Good morning, good morning, good morning. Let everybody Sir, join in. For 5 minutes, then we'll start. Okay? sir, I have a doubt, sir. Tell me. Sir, in for BITSAT eligibility, we need to get 75 in PCM, right, sir? Yes. Sir, including practicals marks, we need to get in 75, or without practicals marks, we need to get 75, sir. Included. Including practical marks, we need to get 75, right, sir? Yes, yes. Yes, sir. Is it fine? Are you eligible? Not eligible, sir. I got only 74.97. I got, sir, in Then that rounds PCM. up. Then that rounds up to 75, na? Sir, does not count, right, sir, because of its 74.97, sir. But I believe that in Andhra Pradesh they give the good grades, na? Sir, In Andhra Pradesh, where do you belong? Telangana. yes, sir. Telangana board only, sir. In Telangana board they give good grades, kya? They give good Yes, marks. sir. But uh, Let paper this time got some tough, sir. you study for some time. I will ask. I will ask which school. I will mail them. Okay? Don't you worry about it. Yes, sir. Okay. You can also mail them, okay? Yes, sir. How, sir? There is a email given on the bitsadmission.com. We can mail them for now about the eligibility, okay? Yes, sir. I will mail them, sir. Yes, yes, yes. Also, I believe that it is 74.99, so it rounds up to 75, I believe. Yes, sir. There will be Sir, a, including the practicals, I gets up to 80 percentage, sir. 80 inclu- percentage. including, Including including practicals, I gets 80, sir, in PCM. so practicals are included, na? This is Yes, sir. included. Yes, sir. Practical is included. You are eligible. What is the problem? No, sir, I got little bit doubt. That's why I asked you, sir. Uh, Including practicals, how much you got? 80, sir. So For practicals are eight. included, na? What is the problem? Yes, sir. If practicals are included, I am eligible, sir. Practicals are 100% eligible, I'm telling you. Practicals are of the physics and chemistry itself. There are no practical in math. Yes, sir. Yeah. So practical marks are included. Is practical marks mentioned in your results? Mentioned, sir. Mentioned. Then what you want? You are eligible, man. You know what? Yes, sir. What happens in CBSE? There are 70 marks for theory and 30 marks for practicals. Okay. Yes, sir. In CBSE, there are 30 marks for the. There are 30 marks for that. What is that? 30 marks for the practicals and 70 marks are for theory, isn't it? Yes, sir. So both are calculated in the same way. The physics, chemistry, mathematics cannot be completed without any kind of practical. Are you getting me? Yes, sir. I am getting this. So you are eligible. Don't you worry about it. You focus on studies. Okay. Yes, sir. Okay. Let me share my slides with you. Then we will start doing. ओके बेटा आज का हमारा नया टॉपिक सीरीज करते हैं हम प्रद्युमन बता दीजिए मैसेज में कैन यू सी मी कैन यू हियर मी बता दीजिए ओके मैसेज कर दीजिए कैन यू सी मी कैन यू हियर मी एम आई ऑडिबल इनफ एम आई ऑडिबल गुड तो सीरीज कंप्लीशन तुम लोग समझते ही हो सीरीज कंप्लीशन 75% ओवरऑल और एक लेस देन और हर सब्जेक्ट में 60% मिनिमम ओके यू आर एलिजिबल गाइस डोंट यू वरी अबाउट इट
टोटल तो होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के 75%, और किसी में 80 हो सकते हैं और किसी में 65 हो सकते हैं, पर किसी भी सब्जेक्ट में 60 से ऊपर होना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज, अभी एलिजिबिलिटी पे ध्यान मत दो, अभी तो क्लास पे ध्यान दो। पैटर्न हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कॉम्बिनेशन, फिर फाइंड द मिसिंग टर्म, रॉन्ग टर्म। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक अप्रोच क्या होता है नंबर सेट का? एनालाइज द डिफरेंट टर्म इन डिफरेंस, इफ द डिफरेंस इज कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट डिफरेंस सीरीज। इफ द डिफरेंस इज इंक्रीजिंग, अगर उनके बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है फास्टली या स्लोली, तो ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। इफ द इंक्रीज इज वेरी मच एंड इट इज नॉट द स्क्वायर सीरीज, देन ट्राई टू क्यूब करके देखो, क्यूब नहीं हो तो 4 टाइम्स करके देखो, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इफ द नंबर ऑफ फ्रेंड आर सेम, इट्स अ प्रोडक्ट, अल्फाबेट सीरीज। इस तरह से करते हैं, ABCD EFG HI J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। इनको पहले तो 1 से लेके 26 तक लिखो, फिर 1 से लेके 26 तक उल्टा लिखो, और फिर उसके बाद देखो क्या पैटर्न बन रहे हैं। अल्फा न्यूमेरिक मेथड, इन अल्फा न्यूमेरिक मेथड द पैटर्न इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द नंबर्स एंड लेटर्स। These kind of problems use both the mathematical operation and position of the letters in the alphabet, both forward and backward. Continuous patterns हो सकते हैं। Method to solve continuous series, firstly काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक गिनेंगे, नंबर गिनेंगे, मैं करना सिखाऊंगा आपको। चलिए हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ओके, आज हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। हमारे को लगभग कितने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं यहाँ पे? 24 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ट्राई कीजिए, एक अल्फा न्यूमेरिक का पैटर्न का करते हैं, उसके बाद हम इसको डिसाइड करेंगे। तो योर टाइम से स्टार्ट नाउ, आई एम गिविंग 10 मिनट फॉर 7 क्वेश्चन, 7 मिनट फॉर 7 क्वेश्चन। ओके। ओके, श्री राम ने कर लिया। B B B D A A B, और भी बच्चे करो फटाफट। गुड, वेरी गुड श्री राम। आई थिंक तुम पैटर्न समझ रहे हो। बाकी बच्चे भी करो। यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि तुम लोग अपना टाइम कहीं और लगाओ पढ़ाई में, और ये हम पे छोड़ दो।
क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज ट्राई कीजिए सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलिए 2 मिनट और है आपके पास। कर लिया सबने? भारत रेड्डी, मलाडी श्रीराम, दिया धीरा, बाकी भी करो, जीपी लेखन का लिखना। बी 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 डी ए बी सारे कर लो। ठीक है, चलिए करते हैं, आइए। ए सी एफ जे, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ। एक बड़ा, ए के बाद बी आना चाहिए था, यस और नो? ए के बाद क्या आना चाहिए था? ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ई, यानी कि पहले एक का डिफरेंस वो दो का डिफरेंस, एफ जी एच आई जे, तो के एल एम एन, नेक्स्ट वर्ड होना चाहिए ओ, क्योंकि पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर 4 बढ़ेंगे, ठीक है? तो आंसर इसका हो जाना चाहिए सर बी। अभी दूसरा देख लीजिए कितने बच्चों का सही है। ए आया, फिर जेड आया, फिर डी आया, ए जेड, ठीक है। ए के बाद डी, डी के बाद जी, बी सी डी, ई एफ जी एच आई, यहाँ आना चाहिए आपका जे और जेड, ये दो दो के पैर बन गए, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ आना चाहिए आपका डब्ल्यू। तो जे डब्ल्यू आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी वाला। इसका आंसर क्या हो गया था? बी वाला। ये करिए एनजे, ठीक है। पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू आर एस होना चाहिए सर, ठीक है। एस, एस किस किस में? एक किस में और एक इस ऑप्शन में एस, तो ठीक है। और वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड,
यू वी होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए एस यू, तो क्या होना जाएगा इसका भी आंसर बी हो जाएगा बेटा। ठीक है, और लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, लेट अस सपोज ए जेड वाई ई एक्स एम आई वी यू, ए जेड वाई ई एक्स एम आई वी यू, ए जेड वाई ई एक्स एम आई वी, ठीक है। ए के बाद ई, ई आई, आई के बाद क्या आना चाहिए, ए बी सी डी, तीन बड़े ई आ गया, एफ जी एच, फिर उसके बाद आई आ गया, जे के एल, अब आएगा एम। तो एक एम देख लीजिए, बी में भी एम आगे है और ए में भी एम आगे है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड, वी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यू वी डब्ल्यू एक्स है, पी क्यू आर एस टी यू वी, तो एस टी और आ जाना चाहिए, तो एम टी एस, यानी कि इसमें आंसर ए वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। डी, अब देखिए यहाँ पे पहला वर्ड है जे एच आई एच ई एफ जी, डी ई ई, डी के बाद ई आना चाहिए, ई के बाद आना चाहिए। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो, डी के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए सर, ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, एफ के बाद एफ जी, जी के बाद एच आना चाहिए, एच के बाद जी, एच आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, तो एल यहाँ पे कहाँ है, केवल ऑप्शन ए में है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। बी सी सी डी ई, पहले दो आए फिर तीन आए, फिर दो आए फिर तीन आए, फिर दो आए, तो बी सी। ठीक है, और ये लिया है और उसके बाद तीन नेक्स्ट वर्ड आए हैं, ये लिया है फिर तीन नेक्स्ट वर्ड आए हैं, तो इसके बाद जी एच आई, नेक्स्ट तीन वर्ड हो जाएंगे, ई एफ जी डी ए बी सी, बी सी सी डी ई, डी ई ई एफ जी, एफ जी जी एच आई, ये आंसर हो जाएगा। सेवन, सी डी ई, सी के बाद ई के बाद एफ आई, ई एफ जी, जी के बाद एच आई के बाद जे के बाद आएगा के, तो फर्स्ट लेटर के हो गया, एफ के बाद आई के बाद ई एफ जी एच आई, जे के एल, एम एन ओ, पी क्यू आर, तो के आर दोनों हो गए, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, आई जे ई एफ जी एच आई, तो यह होना चाहिए के आर एच, तो क्या आंसर हो गया मेरा सर, ए वाला। तो देख लेते हैं किस किस का सही जवाब है, यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा बी 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 ए ए ए, नहीं, बी 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 ए ए ए ए, तीन बार भी चार बार ए, देखें किस किस का सही है। काफी बच्चों ने सही बताया, जिन बच्चों का गलत हुआ वो सही कर लें, मल्लाडी का एक आध रॉन्ग है, आगे सब ठीक है। चलो वेरी गुड बेटा, चलिए आगे बढ़ते, चलिए 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 आगे बढ़ते, कहीं मत जाइए, में रहिए। ठीक है, चलिए बेटा आइए, अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, प्रद्युम्न प्रद्युम्न शर्मा के सही आंसर हैं, भारत के भी है, दिया इज ऑल्सो डूइंग करेक्ट, हर्षवर्धन, हिमांशी इज क्वाइट रेगुलर ऑल्सो इन आवर क्लास, श्रीराम, पुलकित, वंशिका। ओके, now we have solved them. Now the next task for you is solve question number 8 to 12, 8 9 10 11 12 करिए, 5 मिनट से 5 क्वेश्चन से do it।
कर दिया बेटा? हो गया? चले करते हैं। मिसिंग लेटर बताना है, क्या हो सकता है? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा है, काम आएगा। सबसे पहले तो आपको मिसिंग लेटर अल्टरनेटिव बताना। आप प्लेसेस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 लेटर का ये वर्ड है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर का वर्ड। 15 को अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तीन 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 में डिवाइड कर सकते हैं। हमको पूछा है इसने फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? बेस्ड ऑन द लेटर, सम लेटर्स आर मिसिंग, तो ए बी एक्स। ठीक है, तो तीन लेटर का ही शब्द हो सकता है। तो अगर हमारे पास 15 हैं और हमारे को कितने ब्लैंक्स दिए इन्होंने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमको यहाँ पे ब्लैंक्स भरने हैं। तो हम ट्राई करते हैं जमाने की कि मेरे पास क्या क्या ब्लैंक्स है। लेट अस सपोज कि मेरे पास क्या क्या ब्लैंक्स है और उसको मैं कैसे कैसे सेटिस्फाई करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए, एक बार देख लीजिए। चल, थोड़ी सी रैंडम स्क्रिबलिंग करता हूँ मैं। और ए बी ब्लैंक, और क्या है? डी ब्लैंक ब्लैंक,
और क्या है B ब्लैंक D, और क्या है M ब्लैंक ब्लैंक X ब्लैंक ब्लैंक। अब सोचिए, इसमें मेरे को यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है X M A X X X। तो चलिए पहला वाला करके देखते हैं। ठीक है, क्या बनेगा मेरा A B X। दूसरा क्या बनेगा मेरा D M A। तीसरा क्या बनेगा मेरा B X B स्पेस D। ठीक है, D M A A B D D M A। उसके बाद आ गया B स्पेस D। तो 1 2 3 3 खत्म हो चुके हैं। B X D B X D। तो ये आपको कुछ मजा आ रहा है क्या इसमें? ठीक है, इसकी जगह अगर मेरा कुछ बी एक्स डी ए बी एक्स डी एम ए बी एक्स डी, तो अब आप देखिए एक्स अगर ट्रेवल कर रहा है क्या। ठीक है, बी एक्स डी, उसके बाद बी एक्स डी, उसके बाद एम ए बी, और उसके बाद एम ए बी। ठीक है, और एम ए बी, और उसके बाद एक्स डी ए। ये कुछ साउंड अच्छा कर रहा है क्या? सोचिए सोचिए सोचिए, करिए ट्राई करिए। या फिर एक काम करें, 5 5 के ब्लॉक ना बना के, 3 3 के ब्लॉक ना बना के, हम कितने के ब्लॉक बनाए यहाँ पे 5 5 के। क्या 5 5 भी हो सकता है? हो सकता है सर। तो 5 5 के ब्लॉक बना लो, 5 5 के 3 ब्लॉक बनेंगे। ये हमें चेक करना पड़ेगा। नॉर्मली इतने सारे ब्लॉक पूछेंगे नहीं, 5 5 के बना लो। ठीक है, तो पांच, पहले 5 में क्या आ सकता है ए बी स्पेस डी 1 2 3 4 5, पहला। दूसरा स्पेस बी स्पेस डी एम। तीसरा स्पेस स्पेस एक्स स्पेस स्पेस। तो क्या हो सकता है बताइए, आप खुद ही बताइए, चलिए करिए, बताइए बच्चों। 5 5 के स्पेसिस में ले लीजिए इसे। एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। देखिए ए बी एक्स डी एम ए बी एक्स डी एम ए बी एक्स डी एम, ये हो सकता है। तो ये सब मुझे कहाँ मिल रहा है? अगर ऐसा हो जाए ए बी, और यहाँ पे मान लीजिए सब में एक्स है, तो एक्स डी एम। दूसरे वाले में कहाँ मिल सकता है ए बी एक्स डी एम ए बी एक्स डी एम। ये कुछ मेरा कॉम्बो बन सकता है। तो मेरी यहाँ पे वर्ड आ सकती है एक्स एम एक्स, सॉरी एक्स एम ए एक्स एक्स एम ए एक्स ए बी डी एम एक्स एम ए एक्स ए बी डी एम। तो बी आंसर हो जाएगा इसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। कुछ बच्चों ने इसका सही जवाब भी दे दिया। किसने दिया है? बी। मरलाजी ने दे दिया, पुलकित ने दे दिया, हर्षवर्धन ने दे दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऐसा पता लग गया ना आपको? अब आप गिन लीजिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगेन 15, अगेन 15। हाँ जी सर, अगेन 15। सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका अप्लाई करिए। ये क्वेश्चंस आपको बिटसेट में 100 100 100 पर गए मिलने जा रहे हैं। अगेन 15 कैसे करेंगे? एम सी स्पेस एम स्पेस,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 no 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है यहाँ पे। 17 को तो आप कैसे बांट सकते हो? क्वेश्चन में कोई एरर तो नहीं है, चेक करने दो। चलिए, ये क्या वर्ड बन रहा है? MCA MCA MCA। ओहो, वेरी गुड। MCA 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 MCA। तो कैसे बनेगा? MC पहला वाला हो जाएगा A, दूसरा हो जाएगा C, तीसरा हो जाएगा M, चौथा हो जाएगा M, पांचवा हो जाएगा M, छठा हो जाएगा A। तो ACMMMA हमें देखना, ACMMMA, तो इसका आंसर हो जाएगा सर A। 10th वाला कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। ठीक है, चार चार के तीन पैर बनेंगे सर, तो कह सकता हूँ BCAB। बी बी ए ए नहीं, क्या बन सकता है? बी ए बी ए ए बी, देखते हैं। BA AB ABBA ABAB BAAB ABBA ABAB, तो इसका मतलब ये तो BAAB यही वाला फॉलो कर रहा है। BAAB BAAB ABBA BAAB, ठीक है सर। BAAB तो ये डी वाला फॉलो कर पा रहा है मेरा। 11 करते हैं, BCAB, बताइए, ट्राई करिए। 11 में कितने की पेयरिंग बन पा रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 3 3 की पेयरिंग बन पा रही है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं इस केस में? लेट अस सपोज ए बी सी, उसके बाद ABC ABB CABC ABC, ठीक है। तो बी हो ना सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। और उसके बाद ABC AB, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का आ जाएगा मेरा, ABC ABB CAB CCA, चेन बन गई ना। ABC ABB CAB CCA। तो गुड क्वेश्चन, ये वाला 11, ABC ABB CCA CAB CCA CAB CCA, ये वाली चेन बन गई। तो इस वजह से 11 में हमारा क्या आंसर हो गया था? ए ऑप्शन।
अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन किया है क्या आपने बच्चों ट्राई? 12th वाला क्या कह रहा है ये? वही प्लेसेस गिनो इसमें भी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर भी हो जाता है करके देखेंगे तो। PQRS PQRST इस तरह से फॉलो करता है, शायद आंसर इसका हो जाता है मेरे हिसाब से। ए होता है या सी होता है? शायद सी हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा। क्वेश्चन करिए आप 13 to 19। आई एम गिविंग यू 5 मिनट। कोई बात नहीं, एमके बता देंगे हम, सारे क्वेश्चन करके बताते हैं एमके। क्वेश्चन नंबर 13 to 19 ट्राई कीजिए आप, ठीक है बेटा। लग रहा है बेटा? ऐसा क्यों लग रहा है? एमके प्रोडक्टिव फील नहीं हो रहा? फील वील कुछ नहीं करना। अच्छा बुरा प्रोडक्टिव बहुत अच्छा कुछ नहीं, बस काम करते जाना है, बस रगड़ना है। ठीक तो है। प्रोडक्टिव है नहीं है, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, मान लो प्रोडक्टिव फील हो रहा है, मार्क्स नहीं आएंगे वहां पे, क्या फायदा है ऐसा प्रोडक्टिव फील करके? ठीक है, जो चीजें तुम्हारे हाथ में है उनके बारे में सोचो।
जो तुम कर सकते हो उसके बारे में सोचो। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, पेपर बिगड़ना, रिजल्ट ना आना, नेगेटिविटी होना, ये सब चीजें होने में तो वैसे भी हो सकती हैं, तुम उसमें सोच के क्या कर लोगे? इसलिए सोचो मत इन चीजों को, आगे बढ़ो। मैं सभी बच्चों से यही निवेदन करूंगा, आई वुड ओनली एडवाइस देम, जो डू व्हाट यू कैन, डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू कैन नॉट। ओके? जो आप कर ही नहीं सकते उसके बारे में आप सोच कर लोगे, आप क्या कर सकते हो? ईरान में, गाजा में लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, आप लोग क्या कर सकते हो? रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, आप क्या कर सकते हो? डल फील हो रहा है, आप क्या कर सकते हो? आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ो। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, आ जाइए। 23, 21, 23, दो बड़े, फिर चार बड़े, फिर छह बड़े। 21 से 23 में कितने बड़े बेटा? दो। यो दो। यहाँ से यहाँ कितने बड़े? चार। यहाँ से यहाँ कितने बड़े? छह। तो अब कितने बढ़ेंगे? आठ। तो आंसर क्या आएगा? 41। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये पीवाई क्यू 2014 में आया था 68, 67। वन घट डाउन, एक घटा, ठीक है। 67 से 64, तीन घटे। 64 से 59, पांच घट गए। वन, थ्री, फाइव। अब कितने घटेंगे? सेवन। तो 59 माइनस सेवन यानी कि कितना हो गया? 52। आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक के बाद आठ आया, आठ के बाद 27, यानी कि एक के बाद आठ आया, आठ के बाद क्या आया? 27। तो टू का क्यूब, वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब। तो अब क्या आना चाहिए? फोर का क्यूब। चार चौको 16, 16 चौको 64। फोर इंटू फोर इंटू फोर। यहाँ क्या है? वन का क्यूब, यहाँ टू का क्यूब, यहाँ थ्री का क्यूब। फोर है, सेवन है, 13 है, ठीक है। तो फोर के बाद थ्री बढ़े, थ्री के बाद सिक्स बढ़े, तो थ्री, सिक्स। और यहाँ क्या है? 13 है। और 34 से 49 में कितने हैं हमारे? 44, 59, 15 बढ़े। तो बीच में क्या आएगा? नौ। तो 13 + 9 कितना हो जाएगा? 22। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 5 + 6, यहाँ पे 6 का आंसर है। यहाँ पे 11 + 17, तो यहाँ पे डिफरेंस है 6 का। यहाँ पे डिफरेंस है 13 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? अच्छा, ये कुछ ऐसा है, सुनो, कुछ अलग है ये। पाँच का डबल कितना होता है? 10। 10 + 1, 11। 11 का डबल क्या होता है? 12। 12 + 22, 22 + 2, 24। 24 का डबल कितना होता है? 24 का डबल कितना होता है सर? 48। 48 + 3, 106 का डबल कितना होता है सर? 212। तो पाँच। तो यहाँ क्या आएगा? 48 + 4 आना चाहिए। वैसे तो 52 आना चाहिए, 52 और 106, 52, 51। 51 का डबल 102। 102 में चार, तो 48 में तीन, तो 48 में तीन जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा इसका आंसर। 24, फिर 6, फिर 18, फिर 9, फिर 36, फिर 9, फिर 24। 24 4 जा 24, 9 3 जा 9 2 जा 18। क्या होगा इसका?
24 6 18 इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और इसको इससे डिवाइड किया 4 आया, इसको इससे डिवाइड किया 2 आया, इसको इससे डिवाइड किया 4 आया। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे कि 2 आ जाए, तो 12 आंसर आ जाएगा। तो 4 2 ऐसी सीरीज आ जाएगी। 83 82 81 80 81 और 69 के बीच में कितने वर्ड हैं? 12, 12/2 यानी कि 6। 69 + 6 75। ये वाला क्वेश्चन क्या है यार? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19। 1 स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन कुछ गलत है शायद। इसे छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, मैं इसको करूँगा, ठीक है। I'll solve it। कितने बच्चों का हो गया? चलिए कमेंट में बताइए किस किसने क्या क्या जवाब दिया। पुलकित, MK, और भी बाकी बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, इंजला। ओके, चलिए चलिए लास्ट पेज अब इसका करते हैं हम। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 22 24। ओके, 20 से लेके 24 तक करिए, और आपको गलत टर्म बताना है कि यहाँ में इन सब में कौन सी रॉन्ग है। प्लीज डू इट।
करो बेटा करो। करो बेटा करो, ट्राई करो। चलिए करते हैं बेटा।
चलिए बेटा सॉल्व करते हैं, आ जाइए। एक सौ साठ, 118, 83, 65, 34, 20, यानी कि डिक्रीजिंग हो रही है। तो यानी कि आप देखो 108 के बाद 118 आया, फिर ये आया, फिर ये आया। अब देखो 65 से 20, 34 से 20 में कितने का अंतर है? 14। 65 से 34 में कितने का अंतर है सर? 31 का। 83 टू 65 में तो डिफरेंस कम होता जा रहा है ना। तो इसमें आप बताइए क्या मिसिंग टर्म होगी, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें जो मिसिंग टर्म है वो है डी वाली। क्यों? डी में क्या है सर? डी में आप देख लीजिए, डी में है ये आपका 65। ये जो है आपकी रॉन्ग टर्म है। क्यों? क्योंकि सब तरफ से आपका डिक्रीमेंट हो रहा है, ये आपका डिक्रीमेंट फॉलो नहीं कर रही। 7 into 6, 7 into 5, 7 into 4, ठीक है। तो यहाँ 55 होना चाहिए। देखिए, आप खुद देखिए, आप देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस हुआ। 7 42 का डिफरेंस है। 7 into 5 35 का डिफरेंस है। तो 7 into 5 यहाँ पे आना चाहिए 55। भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ का कितने का डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है आपका 7 into 6 का, दूसरा है आपका 7 into 5 का, तो तीसरा होना चाहिए आपका 7 into 4 का, लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ होना चाहिए 55। तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी, 65। 1 के बाद 9 आया, यानी कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद किसका आया? ये 9 का स्क्वायर। तो यहाँ आना चाहिए था 7 का स्क्वायर, 49 आना चाहिए था। तो सी आंसर हो गया आपका सी। 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 17, 17 के बाद 24, 8 का अंतर, 24 के बाद 38, 33, 13 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर था। तो 5, 7, उसके बाद 11 का अंतर आना चाहिए था ना। 17 के बाद 11, 28 आना चाहिए था। तो 24 आपका गलत टर्म है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं मेरे? प्राइम नंबर। 1788, 892, 444, 220, हाफ हाफ हो रहे हैं क्या? 23। इसका आंसर भी बी हो जाएगा, सेम पैटर्न के सेम लॉजिक से। ये टर्म नहीं आनी चाहिए, 220 के बाद आना चाहिए था, तो 110 या 100 छोटा आना चाहिए था। ये पैटर्न गलत हो गया। 2, 5, 12, 2, 3, 3, 5, 2 के बाद 3, 3, 5, 5, 8, 8, 12, एक बड़ा, दो बड़े, तीन बड़े, चार बड़े, 5 बढ़ने चाहिए थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 18। तो डी नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था 17। ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज का न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स है। इसके बाद आंसर और हिंट भी दिए हुए हैं। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे देख भी सकता है और सॉल्व कर भी सकता है। ठीक है बेटा। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। दिया, झींगा, वंशिका, हिमांशी, पुलकित, एम के, मल्लादी श्रीराम, इनला भारत रेड्डी, ओके वट एवर। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। कल भी हम आगे बढ़ेंगे, और कल हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक? लॉजिकल डिटेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज जो आ जाएंगे। ठीक है, लॉजिकल डिटेक्शन करेंगे, लॉजिक चार्ट करेंगे, यानी कि 2 टॉपिक ये और एक कंप्लीशन ऑफ फिगर 4। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और उसके बाद 5 ये करेंगे। इसके साथ हमारा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग 7-8 लेक्चर में ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय।